For navigation we use this directions like this. North को ऊपर की तरफ लेते हैं, east is like this, west is like this, and south is like this. ठीक है. So for upcoming questions, you can take your east as the x-axis and north as the y-axis. North को positive y ले लिया, east को positive x ले लिया, तो west negative x हो जाएगा, south negative y हो जाएगा. So suppose किसी person का displacement vector दिया हुआ है like this, that it is 10 kilometer in a direction, 10 kilometer in a direction, 60 degree north of west, and you want to write it in vector form. So what you can do, you can just draw your x and y axis, or you know that your y is north, your x is east, north of east. So north of east means north से east की तरफ 60 degree. North of east, no, east से north की तरफ 60 degree. So north of east, from east towards north, this angle is 60 degree, and the length is 10 kilometer. So if I want to write his displacement in terms of values, so I can just write the OP vector as 10 cos 60 I cap plus 10 sin 60 j cap. Or unit given is, so I should write the unit as kilometer. So that will be 5 I cap plus 5 root 3 j cap kilometers. This is the displacement vector of this person who is walking 10 kilometer in a direction 60 degree north of east. Okay, I'll give you some more examples like this for navigation or displacement vector. So a man walks, or let us say 5 root 2 kilometer in a direction due northeast. So northeast पता है north और east के बीच में होता है. This angle कितना बनेगा 45 degree. Write this displacement in terms of I cap and j cap. सबसे पहले x और y axis बनाएंगे, that is north और east वाला direction show करेंगे. फिर इसका displacement vector draw करेंगे. Length है 5 root 2. North east मतलब north और east से equal angle बनेगा, that will be 45 degree. Aditi, can you tell me the OP vector? 5 root 2 5 root 2 cos 45 I Cap plus 5 root 2 sin 45 j cap. Yeah. Unit is kilometer. Cos 45 होता है 1 by root 2, so 5 I cap plus 5 j cap. Like this, we can write this displacement vector. Solve for this. Value third वाला हो गया? हाँ sir. Tell me the value. 10 I cap minus 10 root 3 j cap kilometers. 10 I cap minus 10 root 3 j cap kilometers. So 60 degree south of east है, means east से south की तरफ 60 degree. So cos minus 60 नहीं भी पता है, then we can just guess कि हाँ fourth quadrant में है तो I component positive होगा, j component negative होगा. Apurav, can you tell me the fourth one? South of west means west से south की तरफ 30 degree. 10 cos minus 30 plus 10 sin minus 30. अच्छा, सिर्फ लेंथ निकालते हैं तो 10 cos 30 लिख देते हैं. ठीक है, 10 cos 30 लिखते हैं I cap, और -30 अभी नहीं लिखते हैं, we'll use that later. So 10 cos 30, क्योंकि ये वेस्ट में जा रहा है तो मैं माइनस साइन पहले ही लगा देता हूँ. Then we have 10 sin 30 j cap, और क्योंकि ये साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. किलोमीटर्स.
So minus 10 root 3 kilometer, 10 root 3 I cap minus 10 j cap. Yeah, Naman. Tell me. Sir, OP vector is Yeah. equals to minus 20 I cap plus Mhm. 20 J cap. Plus 20 j cap. Very good. This is in kilometers. So नॉर्थ वेस्ट में है, बस दोनों से एंगल बनेगा 45 डिग्री, नॉर्थ से भी और वेस्ट से। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो इजी ही चल रहा है सब अभी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव आस्क। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी दिया हो तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो था सिंगल एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो तो। सपोज दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना हो, सो पहले एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, अगर सिंपली दो वेक्टर्स गिवन हो, लाइक दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, कॉल इट ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल गिवन हो, लेट अस से एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो दो वेक्टर से दोनों के बीच का एंगल है थीटा, एंड लेट अस से जो ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड इज ए और बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू है बी। सो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ध्यान रखना है, वेक्टर्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब एक का टेल दूसरे के हेड पे हो। मीनिंग इफ यू वांट टू ऐड टू डिस्प्लेसमेंट, अगर दो डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो फर्स्ट यू विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन यू विल गो फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अगर वेक्टर्स ऐसे गिवन हो ए बी और ए सी, तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि हाँ ये इसके ऊपर ऐड कर दिया, तो यहां से यहां पहुंच नहीं सकते हम यूजिंग ए बी एंड ए सी। सो दैट्स वाई दूसरे वेक्टर का जो टेल है उसको हम पुट करते हैं पहले वेक्टर के हेड पे, देन ओनली यू कैन फॉलो दिस पाथ टू कंप्लीट द डिस्प्लेसमेंट। सो अगर मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसमें आई एम एडिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो मुझे बी के टेल को ए के हेड पे रखना पड़ेगा। I will tell you how. So we'll take this vector b vector and इसका b का tail I am putting it over the head of the a vector. अब resultant को लिख सकते हैं। Now the resultant will be from initial tail to final head. So resultant will be from initial tail, पहला वाला जो tail था, from there to the final head. मीन्स ए से ए और बी को ऐड करना है तो पहले यहां से यहां मूव किया, फिर यहां से यहां मूव किया। सो दिस इज द फाइनल एडिशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स। सपोज मुझे रिजल्टेंट का लेंथ निकालना है और इसका एंगल भी निकालना है अल्फा, जो ए वेक्टर से बन रहा है। सो फॉर दिस अगर ये वाला एंगल थीटा है, सो आई कैन राइट दिस एंगल इज आल्सो थीटा, हॉरिजॉन्टल से बी का एंगल विल बी थीटा, एंड देन आई विल टेक कंपोनेंट ऑफ बी। अच्छा, ये कंपोनेंट वाला चीज बार बार रिपीट होगा। अगर बी का कंपोनेंट ले रहे हैं, बी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मैंने बी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया और वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया। सो इसका लेंथ है बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बन रहा है। तो जो बेस का लेंथ है दैट यू कैन राइट इट एज बी कॉस थीटा, एंड जो वर्टिकल हाइट है दैट यू कैन राइट एज बी साइन थीटा। और ये जो यहां से यहां तक का लेंथ है दैट इज ए। सो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इन दिस बिग ट्राइंगल, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं लाइक दिस। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर, दैट इज रूट ओवर दिस बड़ा वाला ट्राइंगल, इसका बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से यहां तक ए, देन यहां से यहां तक बी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
plus 2ab cos theta. तो दो वेक्टर्स गिवन है और दोनों के बीच का एंगल गिवन है. Then we can add them up like this. जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा that will be root over a square plus b square plus 2ab cos theta. और अगर अल्फा निकालना है then you can write tan alpha is equal to जो vertical height is b sin theta and the base is a plus b cos theta. So यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ये फॉर्मूलास याद रखने हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर मेथड याद हो देन इट विल बी रियली बेनिफिशियल कि थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करे तो अपना फॉर्मूला भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम ट्राइंगल ऑफ एडिशन यूज करके ही ऐड कर रहे हैं. ए फर्स्ट साइडेड ट्राइंगल का, बी सेकेंड साइडेड ट्राइंगल का, और दोनों का एडिशन इज थर्ड साइडेड ट्राइंगल का. सो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. दिस इज यू आर यूजिंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन. अच्छा, एक चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं. दिखने में तो सिंपल सी चीज है बट कभी कभी डाउट हो जाता है. सो आई जस्ट टेल. सो ये ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. सो फॉर एग्जाम्पल अगर दो वेक्टर ऐसे गिवन है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री. सो वी राइट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री. थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं आता. बट सपोज ऐसा गिवन है, ए वेक्टर इज लाइक दिस और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और एंगल दिया हुआ है 120 degree this one. So tell me the angle between A vector and B vector. $60. 60 degree is correct. So ध्यान रखना है अगर ऐसे गिवन है तो सबसे पहला काम करना है कि दोनों के टेल को एक पॉइंट पे लाना है. सो वेक्टर बी को पैरेलली मूव कर सकते हैं. वेक्टर बी को बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव किया, सो यू कैन मूव इट हियर. So angle between A vector and B vector is again 60 degree. 120 degree नहीं लिखना है. अगर 120 degree यहाँ पे पुट किया फॉर्मूले में तो गलत आंसर आएगा. This is A vector, this is B vector, और ये वाला एंगल गिवन है 45 degree. Find angle between A vector and B vector. So A vector या B vector को मूव करके दूसरे के टेल पे लाना है. Then only you will calculate angle theta. Nupur, can you tell me the value of theta? 135. 135 is correct. So B vector को मूव करके यहाँ पे लाना है. दूसरा काम भी कर सकते हैं, A वेक्टर को मूव करके यहाँ पे ले आए. So B vector, so ये वाला एंगल 45 given है. So this is 135. So theta will be 135 degree. बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें, इनको ध्यान में रखना है. जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती हैं स्टूडेंट्स भूलते जाते हैं ये बेसिक चीजें. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस एंगल इज गिवन एज 159 डिग्री. 159. 159 करेक्ट. सो दोनों के टेल को आगे मूव कर सकते हैं. और ये वाला वेक्टर, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो या तो दोनों को आगे मूव कर दिया, बी वेक्टर को आगे मूव कर दिया, ए वेक्टर को भी आगे मूव कर दिया. सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज अगेन 159 डिग्री. तो ध्यान रखना है दो वेक्टर्स का सम कैलकुलेट करते रहे. दैट
The value of theta is angle between the two vectors is angle between the direction of two vectors. ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब. A vector given है, B vector given है. It's given that mod of A is equal to mod of B is equal to 10. और ये एंगल गिवन है 60 degree. So question is you have to find R vector, that is no, if R vector is defined as A vector plus B vector, तो पहला काम करना है कि find, you have to find the value of mod of R vector and theta angle or alpha angle. Alpha is the angle between R vector and A vector. तो सीधे फॉर्मूला लगाना है and you have to find the value of R vector or angle alpha between the R vector and A vector. Bharvi, have you solved the first one? 10 root 3. 10 root 3. तो ये हो जाएगा 10 square A square plus 10 square, that is B square, plus 2AB 10 into 10 into cos 60. Cos 60 is half. तो ये आ जाएगा 10 root 3. अगर इसको विजुअलाइज करना चाहे तो पहले B वेक्टर को आगे मूव कराना होगा. सो ये 10 है, ये 10 है, और रिजल्टेंट हो जाएगा A plus B. दिस इज योर R वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 root 3. और एंगल कितना आ रहा है, अल्फा कितना आ रहा है, 30 degree. 30 डिग्री. या अल्फा यहाँ पे आएगा 30 डिग्री. नमन, इज दिस क्लियर? Sir, हाँ. sir, I am not understood. अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सर यही क्यों रखा, यही नहीं आया. अरे यही तो अभी डिराइव किया था ब्रो. सी, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अगर पहले वाले का लेंथ है a, दूसरे वाले का लेंथ है b, तो रिजल्टेंट का जो लेंथ है दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अभी पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो नहीं करेंगे, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे. ओके ओके. ओके. हाँ, ठीक है, फटाफट सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ सॉल्व भी करना है. ओके, जिनका फर्स्ट वाला हो गया, सॉल्व द सेकंड वन. सेकंड वाले में एंगल नहीं दिया. ओके, आई विल गिव दिस एंगल एज 120 डिग्री. अच्छा, जिनको नहीं पता, cos 120 की वैल्यू होती है -12. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एक दो लेक्चर में. राइट नाउ आई विल जस्ट टेल यू द वैल्यू. cos 120 इज -12. अल्फा फाइंड आउट करने के लिए पहले tan अल्फा लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है पहले, एंड देन यू विल फाइंड अल्फा. tan अल्फा आएगा यहाँ पे, आई गेस 1/√3. सो वहां से अल्फा को लिख सकते हैं 30 डिग्री. अपूर्व, कितना आ रहा है आर? टेन 10 करेक्ट है. और थीटा कितना आ रहा है? 60 डिग्री. गुड. इसको विजुअलाइज करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पे रखना होगा, देन ओनली आई कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो अगर ये 10 है, ये 10 है, एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 120 है, तो ये वाला 60 हो जाएगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो इसलिए इसका लेंथ 10 हो जाएगा, और ये वाला एंगल रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. सर एक बार tan alpha देखा हो गया सेकंड का. tan अल्फा विल बी b sin थीटा. b sin 120 होगा √3/2. पॉजिटिव होता है, अच्छा मुझे sin 120 भी देना चाहिए था, अपॉन a प्लस b cos थीटा 10 into -12. तो ये आ जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाई 10√3/2. सो 5√3 डिवाइडेड बाई 10 - 5 is 5. तो ये √3 आ जाएगा, तो अल्फा इज 60 डिग्री. sin 120 इज
plus half. Here mod of A is given as 4, mod of B is also 4, and angle between them is 90 degree. Tell me mod of R vector and the value of alpha. तो kinematics से पहले हम पढ़ते हैं mathematical tools. मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, पहला चैप्टर होगा वेक्टर्स, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, बहुत थोड़ा सा, उसके बाद ग्राफ्स भी देखेंगे, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, और देन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इतना सब कुछ हम पढ़ेंगे। और ये 11th, ये सारे टॉपिक्स 11th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना 12th के लिए। अभी 1-2 लेक्चर तो वेक्टर्स ही चलेगा, फिर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अच्छा, थर्ड वाले का आंसर आ गया। प्रांशु, कैन यू टेल मी मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना आ रहा है थर्ड केस में? Sir, y is coming 4√2. 4√2 इज करेक्ट। ऐड करने के लिए b को a के ऊपर रखा, तो ये वाला ट्राइंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाए तो एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो फॉर्मूला यूज करके भी निकालूंगा तो भी 45 ही आएगा। प्रांशु, टेल मी 45 आ रहा है क्या फॉर्मूले से? हाँ सर 45 ही। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट वाला हो गया किसी से? हु विल टेल मी? आदिति। सर आर आ रहा है 5 5 आ रहा है यार। एंड अच्छा, tan अल्फा इसमें निकालेंगे तो tan इनवर्स 4/3 आना चाहिए। अच्छा, 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा ये थोड़ा एक स्पेशल ट्राइंगल होता है। ये एंगल्स कॉमनली यूज होते हैं जेई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, दैट्स व्हाई आई विल बी टेलिंग यू दिस। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5 वाला, तो इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो हाइपोटेन्यूज होगा वो तो 5 ही होगा हमेशा। तो अगर बेस को लंबा रखा दैट इज 4 और हाइट को 3 रखा, ये एंगल थीटा रखा है, सो यहां पे लिख सकते हैं tan थीटा को 3/4, जहां पे थीटा की वैल्यू होती है 37 डिग्री। तो डायरेक्टली याद रखना है tan 37 इज 3/4। वैल्यू बहुत ही क्लोज होती है, एक्चुअली 37 नहीं होता, 36.9 समथिंग होता है, बट it is easy for examiners to give this value. So tan 37 3/4, तो sin 37 कितना लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5। और cos 37 कितना हो जाएगा? It will be base upon hypotenuse, so 4/5। अच्छा, कभी भी मुझे 37 sin 37 फाइंड आउट करना है तो जस्ट इमेजिन एक ट्राइंगल, इमेजिन अ ट्राइंगल। सो ये 37 है, अच्छा तो ऑपोजिट वाला 53 होगा। तो इतना तो पता है कि छोटे वाले एंगल के अपोजिट में छोटा वाला साइड होता है और बड़े वाले एंगल के अपोजिट में बड़ा वाला साइड होता है। तो वैल्यूज रटने से अच्छा है कि इस ट्राइंगल को इमेजिन कर ले दिमाग में। ट्राइंगल को इमेजिन किया तो 37 बेस पे बनाया, तो 37 के अपोजिट में 3 आएगा, 37 के अपोजिट में 3 आएगा। ओके, क्योंकि छोटे साइड के अपोजिट में छोटा एंगल होता है, बड़े साइड के अपोजिट में बड़ा एंगल होता है। जैसे याद रख सकते हैं 3 4 5 एक बार याद आ गया, अच्छा ट्राइंगल दिमाग में आ गया, अच्छा ये वाला एंगल 37 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो तुरंत आ जाएगा sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/5। तो ये ट्राइंगल याद रखने इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और इसी का यही वाला ट्राइंगल अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, सो सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5, बट अभी जो बेस वाला एंगल है वो मैंने 53 लिया हुआ है, तो 53 एंगल हो गया। और हाइपोटेन्यूज अगर 5 है तो 53 के ऑपोजिट होगा 4 और 53 के साथ वाला होगा 3,
53 के साथ वाला होगा 3। तो फिर से लिख सकते हैं tan 53 के ऑपोजिट होगा बड़ा वाला साइड दैट इज 4 डिवाइडेड बाय छोटा वाला साइड दैट इज 3, और cos 53 भी लिख सकते हैं। रट के याद नहीं रखना है, रटने में बहुत मेहनत लगेगी इसको। एक बस ट्राइंगल इमेजिन कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, sin 53 हो जाएगा 4/5, cos 53 हो जाएगा 3/5। फिर यहाँ से पिछला वाला क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3 आया था क्या, या 3/4 आया था? 4/3. 4/3 आया था। सो 4/3 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 इज 53 डिग्री। ऐसे ड्रॉ भी करेंगे तो बेस छोटा है साइड और परपेंडिकुलर बड़ा है, तो 43 और 37 में से कोई होगा तो बड़ा वाला, तो 53। लाइक दैट वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन the sides of the triangle, that is A vector and B vector. Second is B vector and C vector. Third is C vector and A vector. So suppose first case given है, there are 3 sides of a triangle like this. And equilateral triangle है, तीनों एंगल 60 डिग्री। To find the angle between these vectors, A vector, B vector और C vector के बीच का एंगल। So they are 60, 60, 60. अरे नहीं ब्रो, वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों के टेल को एक पॉइंट पे रखते हैं ना, तो ए वेक्टर को आगे निकालेंगे तब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लिखेंगे। सर एक का टेल और एक का हेड बताया था ना आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया था। सी, मतलब जब निकालना होता है। नहीं नहीं, वो जब ऐड करते हैं तब एक का टेल दूसरे के हेड पे रखते हैं, ये एडिशन के टाइम में था। जब एंगल निकालना हो तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे। ठीक है, जब एंगल निकालना हो तो टेल मस्ट बी केप्ट एट सेम पॉइंट। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, सॉल्व करना है। I'll give you one or two more. इसमें एरो का बड़ा ध्यान रखना है। सर इट्स 120। हाँ, 120 इज करेक्ट आंसर। तीनों का आंसर आएगा हाँ 120, इसमें तीनों आएगा। हाँ सर, तीनों का ही 120 आ रहा है। यस यस करेक्ट।